Hello guys. So, Team Saturday is back with another banging episode on our JCRC 90.8 FM platform. I'm your RJ Preksha hosting you beautiful people. So, first of all, let me clear it out to you guys that this episode is going to be a fun and relevant conversation and discussion over our love for chai. ये गर्मी दिस सीजन रियली सक्स. मैं तो सुबह से काम करके इतना थक गई हूँ और फिर सुबह से चाय भी नहीं पी. चल सैम, लेट्स हैव अ चाय ब्रेक. गर्मी में चाय रियली? चल ना, गेट अप. और तूने सुना नहीं है क्या, जिंदगी वही जीते हैं जो गर्मी में भी चाय पीते हैं. हाँ, चल चले. यू नो व्हाट प्रेक्षा, यू विल नॉट बिलीव, फॉर अस स्पेशली इंडियंस चाय इज अ नेसेसिटी. मेरी बहन तो सुबह चाय के बिना उठती भी नहीं है. व्हाट वी कॉल इट, मॉर्निंग बेड टी. या ये तो मस्ट है. इवन आई एम द सेम. फॉर चाय इज लिटरली अ सेंटिमेंट टू मी. Like I have grown up in a house where cup of chai is called as amrit, where I heard of grandma scolding to give up on this addiction of chai. So, chai is a drink which takes away all our worries, tension and stress जो भी हम workplace पर या फिर while working feel करते हैं. And I will not lie if we say the synonyms of chai are harmony, respect, community and mindfulness. So, let's begin with our fun conversation with Samriddhi. Hi Sam. So, what are your views and your personal definition of chai? हेलो प्रेक्षा, आई टोटली अग्री विथ व्हाट यू सेड अर्लियर. तुमने कहा कि वर्क प्लेस पर, बट वर्क प्लेस ही नहीं, अपनी नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ में भी हम चाय से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं. एंड माई पर्सनल व्यू ओवर चाय इज, चाय में भले चीनी कम हो बट इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. I cannot relate more. And you know what? Your statement or your views over chai really reminded me of that beautiful song that is dedicated to chai. Have you heard that chai song dedicated by Neeti Mohan? Of course I heard it. And you know what? This generation is so over to chai कि कॉफ़ी डेट कल्चर तो ख़त्म सा ही हो गया है. And it is being replaced by chai dates. And one more thing कि it brings new friendship to people. Definitely. मतलब I have not heard in a while कि कोई coffee dates पे जा रहा हो या फिर you know that coffee brand Starbucks and stuff is almost finished और either एकदम fancy चीज़ों के लिए ये सब बन गए हैं. But it's like तुझे चाय पसंद है then let's have chai. And do you remember हमारी friendship भी ऐसे ही शुरू हुई थी. Of course, how can I forget that? And one more factor about chai is that it has its own benefits. Like Sam, do you remember your mom talking about it to other aunties or in colonies? Absolutely. Yes, I've always heard of my mom saying that this has its own medicinal benefits too, like ache, pain, immune system, energy, digestion, and nausea. Yes. And you know what? Indians home have a very specific medicine for all the problems. तुम्हें हेडेक हो रहा है, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लो. तुम थक गए हो, चलो एक कड़क मसाला वाली चाय पीते हैं. Even during menstruation, what I have observed so far is that we girls have experienced its magic कि cramps आ रहे हैं, let's have it a चाय, बहुत relief मिलेगा. Okay. Masala chai has its own ingredients like tulsi, adrak, elaichi, even garam masala. My is tulsi ki chai the most favorite. मतलब I am a die-hard fan of it. What about you, Sam? वैसे तो मुझे चाय कोई भी हो अच्छी ही लगती है, पर जब मुझे ना जुकाम होता है या मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, तब मुझे मेरी मम्मा के हाथ की मसाले वाली चाय पीने में बहुत मज़ा आता है. एंड दैट चाय इंक्लूड्स दालचीनी, लौंग, काली मिर्च. एंड द हैप्पीनेस is when you take the first sip of that chai and it touches your soul. What about you, Preksha? As we are talking about the medicinal benefits, there was a phase during COVID when we all were stuck in our houses. At that time, there were a lot of different types of tea were being suggested and people were actually enjoying it. So, was there any different type of tea you had or you enjoyed the most? अरे यार, क्या बात कर दी. I mean, how can I forget that phrase? Actually, read a lot on medicinal values tea contains during that time. There were so many new names I came to know, like जैसे कि banana tea, hibiscus tea,
lemon tea or ginger tea, and many more. But I remember these only for now. Like these were the most read and heard teas during then and even now. Talking about their benefits, I read on the internet, जो मैं अभी share करना चाहूँगी is like banana tea helps to sleep better. मतलब मैंने जब पढ़ा तो I came to know for people who have trouble in sleeping can have it for soothing sleep, and hibiscus tea is good for inflammation and has antioxidants in it, so people have it for good digestion, for inner blood cleaning. And lemon tea is something I was very familiar. Matlab, after dinner, I had it so much many a times with mom and in family. And it is not so much in hype or consumption like masala chai. मतलब जो अभी हम टी डिस्कस कर रहे हैं, it is not that loved or consumed as masala chai is. क्योंकि people have this conception कि ये तो बस तभी लो जब आप डाइट पर हो या सेल्फ हेल्प और समथिंग we should normalize to have it. मसाला चाय की तो बात ही कुछ और है। Definitely. पर क्या इनमें से कोई टी है जो तुमने ट्राई की हो या तुम्हें अच्छी लगी हो? Yeah, I tried almost all the tea. Like hibiscus tea is one of my favorite जो अभी भी मैं continue करती हूँ to consume it. Lemon tea I have it but only with my mom. Even I too had. When my father was diagnosed with COVID, he was suggested to drink different kinds of tea, like lemon tea the most, because I heard that lemon tea cold में भी बहुत ज़्यादा help करती है आपको, आपके गले को बिल्कुल normal करने के लिए. And the first phase of the COVID, उस टाइम जो मेजर सिम्टम था वो यही था कि आपको कोल्ड होता है कोविड में सबसे ज़्यादा. Like not during the COVID. मतलब recently my friend is hinted with PCOS. So she is also suggested a chamomile tea in her daily routine to have it. For it has so many benefits. It is so surprising and it is so good that just a drink has so many sentimental benefits plus also a medicinal benefit. So guys, as a conversation is coming to an end with Samriddhi, I would like to thank her. Thank you so much, Sam, for this wonderful session. You're most welcome, Preksha, and thank you for inviting me here. Oh, wait. This interesting conversation on chai, a cup of culture, is not ending so soon. Here, we welcome another chai lover, Jyoti. Welcome, Jyoti. हेलो प्रेक्षा, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आप कैसे हैं ये बताओ पहले। मैं एकदम बढ़िया and I was really looking forward to this conversation with you over chai. I know you from so long and I know कि तुम चाय की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो. So, what do you think, Jyoti, about chai culture and hype? तुम्हारा क्या विचार है इस पे? सबसे पहले तो प्रेक्षा, मेरे हिसाब से चाय को लेकर मेरा कोई विचार नहीं है। चाय एक फीलिंग है, एक इमोशन है सबके लिए। भारत में अगर चाय को देखें तो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक माना गया है। और भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। भारत में अगर चाय को देखें तो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक माना गया है। और भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है, मतलब कि चाय Consumption. जी प्रेक्षा। और अभी देखें तो चाय भारत का राष्ट्रीय ड्रिंक बन चुका है। Wow. तो इसके स्वाद और सुगंध में बहुत ही ज़्यादा मिठास होती है, लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं इसकी ओर। और तो चाय एक ड्रिंक नहीं है, चाय लोगों की भावना है जो लोगों की उनकी संस्कृति और विरासत से जोड़ती है। बिल्कुल. और अगर अपन बात करें पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने की, तो राजा महाराजाओं के टाइम पे चाय को बहुत ही आयुर्वेदिक जो औषधि होती है ना, उसके अंदर इसको बहुत बड़ा शाही क्या बोलते हैं उसे, एक दवाई के तौर पर लोगों को दिए जाते थे, जो एक बहुत बड़ी उस टाइम पे चीज़ थी, एक ऐसी औषधि थी जो किसी की तबीयत खराब होती है या बुखार या कोई सी बीमारी तो चाय दे देते थे, तो चाय से वो ठीक हो जाता था पुराने टाइम में। मतलब अगर मेरे पापा के या फिर दादा के टाइम पे बात करूँ तो मेरे पापा बताते हैं कि पहले दवाई ववाई नहीं होती थी, पहले जो चेक करने वाले डॉक्टर्स जो भी होते थे वो आते थे, तो वो बोल के जाते थे कि 1 कप शाम को चाय दे देना, उससे ही सुबह तक ठीक हो जाएगा। Wow.
मतलब यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे जब मैं और समृद्धि बात कर रहे थे कि जो चाय में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि तुलसी, लौंग, इलायची, दीज डू हैव मेडिकल बेनिफिट्स। और यही आपने अभी बताया कि कितने पुराने टाइम से ये सब चलता आ रहा है। चाय का इतना बड़ा हमारे इंडिया में वो कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिसिनल। हाँ, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रकार की औषधि होती थी जो पत्ते हो गए या एग्जैक्टली। इलायची या फिर ऐसी कुछ चीज़ जिससे जो मनुष्य जीवन था या उनका शरीर था, बॉडी थी, उसको काफ़ी लाभ होता था उस चीज़ से। तो बिल्कुल। चाय तो एक तरह से देखा जाए तो एक दवाई भी है और एक मनोरंजन के लिए एक ड्रिंक भी है, एब्सोल्युटली। एक इमोशन भी है, एक फीलिंग भी है, एक याद भी है। मतलब चाय तो एक एक चाय ऑल इन वन जो एक होता है ना कि हम्म, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता चाय बिल्कुल, को, अभी बिल्कुल। तक कोई करता भी नहीं आया है। चाय से तो पाचन शक्ति मतलब उससे अगर आप कुछ काफ़ी हम्म। टाइम पे मतलब पुरानी की बात है, तो खाना खाते थे लोग तो पचता नहीं था तो काफ़ी मतलब वो चाय पीते थे तो उससे पाचन शक्ति में भी डाइजेस्ट हो जाता था जो भी हाँ, ये होता है। मैंने मतलब मेरे घर पे भी ये चीज़ सुनी है। इलायची से बेहतर मतलब मूड जो खराब होता है इलायची से उसका मूड ठीक हो जाता था और अदरक से दर्द ठीक हो जाता था। लौंग अदरक जो बॉडी पेन होता है और दालचीनी का स्वाद और भी काफ़ी सारे चीज़ें शामिल करते थे जिससे बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदा होता था। हाँ, तो मैं अभी समृद्धि से जब हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा था कि उनका सबसे फ़ेवरेट इंग्रीडिएंट क्या है चाय में? तो मैं आपका भी व्यू जानना चाहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी चाय पसंद है? जैसे मुझे तुलसी की चाय बहुत पसंद है। मुझे ऐसे देखा जाए तो मुझे मेरी मम्मी के हाथ की चाय पसंद है। अब वो उसके अंदर कुछ भी डालती हो मुझे पता नहीं। पर वैसे मुझे अदरक वाली चाय ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब रहता है, तो ओके। अदरक से ठीक रहता है। बाकी मेरी जो मम्मी चाय बनाती है, वो मुझे नहीं पता कैसी बनाती है, मैं उसके जैसी उनकी जैसी बना भी नहीं सकती, पर वो बहुत ही अच्छी चाय बनाती है। और एक बात मुझे याद आई, मेरे दादा ने मेरे से कही थी, दादाजी ने, कि पहले के टाइम पे जब चाय बनाते थे तो उसकी जो भाप लेते थे ना, उसको अमृत का रूप दिया गया है। ओके। पुराने टाइम में जो चाय बनती थी मतलब एक कहते हैं ना कि पुराने टाइम पे कि तो मतलब पुराने लोग जो होते हैं वो कोई चीज़ वेस्ट ही नहीं जाने देते। अगर आप चाय देखो तो चाय भी पी रहे हैं और अगर उसकी भाप है तो उसको भी वो मतलब यूज़ करके उसका फ़ायदा ले लेते हैं। तो उसको एक अमृत का नाम दिया गया है, एक अमृत। वाओ! हाँ जी, तो ज्योति अभी आप जैसे बता रहे थे कि इंडिया में मतलब चाय एक राष्ट्रीय ड्रिंक बन चुकी है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको इसके बारे में डिटेल थॉट्स पता है कि चाय का क्या स्टैटिक्स और क्या सोशल स्टैटिक्स है के करंटली? देखो चाय को लेके मुझे इतना तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं इतनी कुछ इसमें पढ़ाई करी नहीं है। पर जितना मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय समाज में चाय एक रस्म बन चुकी है, एक रिचुअल है। भारतीय परिवारों में क्या होता है, कोई मेहमान आता है या कोई शादी ब्याह होता है घर में तो सबसे पहले बिल्कुल। चाय, हाँ जी चाय लाओ, चाय लाओ। तो वो चाय एक एक आम तौर पर एक रस्म सी ही है ये। मतलब आप सर्व की जाती है आपकी अगर बात स्टार्ट होगी तो चाय पे, बात खत्म होगी तो तो चाय चाय पे, पे। आपका वेलकम, आपका जाना आना सब चाय पे। ज्योति लाइक रियली मैं तभी आपसे बात करना इतना पसंद करती हूँ कि आप इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं हर विषय पे, हर टॉपिक पे। अभी तक की इन्फॉर्मेशन वाज रियली रियली मतलब बहुत काम की थी और टू द टॉपिक थी। मैं एक और मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, आपने अभी जितनी बातें बताई कि टी का कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि सही, हाँ, बहुत ज़्यादा। वही। तो मतलब जैसे हर चीज़ का कंजम्पशन बढ़ता है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ और स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा खुलने लगे हैं आज के टाइम पे इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आपका क्या विचार है कि टी इंडस्ट्री और टी स्टार्टअप्स क्या-क्या चल रहे हैं? आपको कुछ अपडेट्स हैं इन पे? हाँ, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत कि जो चाय है, हालाँकि लोगों का काफ़ी बिज़नेस बन गया है चाय का और ये दुनिया में सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा कंज़्यूम करने वाला एक प्रोडक्ट है। मतलब दुनिया में इसे अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो मैंने कहीं पढ़ा था ये कि डेली बेसिस पे 3 अरब 3 अरब हाँ जी। कप जो होते हैं यूज़ होते हैं चाय के। जिसको देखते हुए मतलब ऐसा लगता है कि अभी विश्व में वर्ल्ड में चाय का बाज़ार जो है वो काफ़ी डेवलप हो गया है।
काफ़ी हाँ हद जी। तक। पैकेजिंग को देख लो या फिर प्रोडक्शन को देख लो, या काफ़ी सारे लोग अपनी नई-नई ब्रांचेस जो होता है वो ओपन कर रहे हैं एरिया में। इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। बिल्कुल सब एकदम। दुनिया भर में चाय की दुकानें खुल गई है। और बात करें जयपुर की, तो जयपुर में आप हर कोने पर आपको एक चाय की टपरी मिलेगी। बिल्कुल। आप जयपुर में तो चाय ने इतना प्रोग्रेस किया है अपने कल्चर में, अपने एक सोसाइटी जनरेशन में, सोसाइटी में, कि टपरी से कैफ़े तक का सफ़र कोई सोच नहीं सकता था। जैसे एब्सोल्युटली। पुराने लोग अगर उस टाइम पे सोचते कि चाय इतना वाक़ई में कि इतना प्रोग्रेस करेगा, तो टपरी ले लो। पहले के लोग क्या होता था ना कि एक कोने में जाते थे, चाय की थड़ी। दुकान होती थी, थड़ी, टपरी, जहाँ लोग अपना हैंग आउट करते थे, बात करते थे। अब धीरे-धीरे लोगों ने उसको बिज़नेस में ले लिया। धीरे-धीरे शॉप खुलने लगी, शॉप से फिर कैफ़े खुलने लगे, कैफ़े से फिर लोगों ने अपना स्टार्टअप बना लिया। जैसे कि वो आप उसको जानते होंगे, जयपुर में काफ़ी फ़ेमस है गुलाब जी चाय वाला। साहू चाय वाला। जी, जी, सब मैं जाती बिल्कुल। थी सुबह उठ के साहू चाय वाले के। और चाय सुट्टा बार एक बहुत बड़ा मतलब नया एक स्टार्टअप है चाय सुट्टा उनका बार। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया में उनके 5,000 से ज़्यादा अपने खुद के एक वाओ। शॉप्स है, जो भी उन्होंने फ्रेंचाइज़ी जो भी देते हैं वो। हाँ। एमबीए चाय वाला, काफ़ी सारे हैं। और तो चाय के स्टार्टअप के साथ आप देखेंगे कि चाय की वैरायटी आप मानेंगे नहीं। मतलब आप खैर गए होंगे चाय सुट्टा बार में कभी, तो चाय की वैरायटी 25 से ज़्यादा चाय की वैरायटी है। और मैंने कहीं से ये सुना था और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो उनके ओनर है अनुभव दुबे जी, उन्होंने आज तक ना तो चाय पी, ना स्मोक किया, फिर भी उन्होंने अपने जो स्टार्टअप का इतना इनोवेटिव नाम नाम रखा रखा है, है। चाय सुट्टा बार। वाओ। कैन यू बिलीव? मतलब मुझे नहीं पता था कि चाय सुट्टा बार की बैकग्राउंड स्टोरी ये है, एंड नाउ आई गॉट टू नो, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो यही हम सेशन को आगे लेते जाते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति, इतनी इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन करने के लिए, हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए इन दिस एपिसोड। तो अभी हम एपिसोड को आगे लेके जाते हैं। वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल इंटरव्यू ऑफ अनुभव दुबे जी हिमसेल्फ। सो ऑडियंस, आप कहीं पे भी मत जाइएगा, अभी हम आते हैं विद द अनुभव दुबे। सो I welcome Vikas, Soumya, Jyoti and Simran. Thank you so much guys, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया। Now all to you guys. मतलब कि चाय Consumption. जी प्रेक्षा, और अभी देखें तो चाय भारत का राष्ट्रीय ड्रिंक बन चुका है। तो इसके स्वाद और सुगंध में बहुत ही ज़्यादा मिठास होती है, लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं इसकी ओर। और चाय एक ड्रिंक नहीं है, चाय लोगों की भावना है जो लोगों की उनकी संस्कृति और विरासत से जोड़ती है। और अगर अपन बात करें पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने की, तो राजा महाराजाओं के टाइम पे चाय को बहुत ही आयुर्वेदिक जो दवाई के तौर पर लोगों को दिए जाते थे, जो एक बहुत बड़ी औषधि थी, जो किसी की तबीयत खराब होती है या बुखार या कोई सी बीमारी, तो चाय दे देते थे, तो चाय से वो ठीक हो जाता था। पुराने टाइम में, मतलब अगर मेरे पापा के या फिर दादा के टाइम पे बात करूँ, तो मेरे पापा बताते हैं कि पहले दवाई ववाई नहीं होती थी, पहले जो डॉक्टर्स जो भी होते थे वो आते थे, तो वो बोल के जाते थे कि 1 कप शाम को चाय दे देना, उससे ही सुबह तक ठीक हो जाएगा। वाह। मतलब यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे जब मैं और समृद्धि बात कर रहे थे कि जो चाय में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि तुलसी, लौंग, इलायची, दीज डू हैव मेडिकल बेनिफिट्स। और यही आपने अभी बताया कि कितने पुराने टाइम से ये सब चलता आ रहा है, चाय का इतना बड़ा हमारे इंडिया में वो कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिसिनल। हाँ, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रकार की औषधि होती थी, जो पत्ते हो गए या एग्जैक्टली। इलायची या फिर ऐसी कुछ चीज़, जिससे जो मनुष्य जीवन था या उनका शरीर था, बॉडी थी, उसको काफ़ी लाभ होता था उस चीज़ से। तो बिल्कुल। चाय तो एक तरह से देखा जाए तो एक दवाई भी है, और एक मनोरंजन के लिए एक ड्रिंक भी है, एब्सोल्युटली। एक इमोशन भी है, एक फीलिंग भी है, एक याद भी है। मतलब चाय तो एक एक चाय ऑल इन वन जो एक होता है ना, कि हम्म। उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता चाय बिल्कुल, को, अभी बिल्कुल। तक कोई करता भी नहीं आया है। चाय से तो
पाचन शक्ति, मतलब पुरानी की बात है, खाना खाते थे लोग तो पचता नहीं था, तो काफी मतलब वो चाय पीते थे तो उससे पाचन शक्ति में भी डाइजेस्ट हो जाता था। जो ये मैंने मतलब मेरे घर पे भी ये चीज़ सुनी है। इलायची से बेहतर, मतलब मूड जो खराब होता है, इलायची से उसका मूड ठीक हो जाता था, और अदरक से दर्द ठीक हो जाता था, लौंग अदरक जो बॉडी पेन होता है, और दालचीनी का स्वाद, और भी काफ़ी सारे चीज़ें शामिल करते थे जिससे बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदा होता था। हाँ, तो मैं अभी समृद्धि से जब हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा था कि उनका सबसे फ़ेवरेट इंग्रीडिएंट क्या है चाय में? तो मैं आपका भी व्यू जानना चाहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी चाय पसंद है? जैसे मुझे तुलसी की चाय बहुत पसंद है। मुझे मेरी मम्मी के हाथ की चाय पसंद है। अब मैं उसके अंदर कुछ भी डालती हूँ मुझे पता नहीं। पर वैसे मुझे अदरक वाली चाय ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब रहता है, तो ओके। अदरक से ठीक रहता है। बाकी मेरी जो मम्मी चाय बनाती है, वो मुझे नहीं पता कैसी बनाती है, मैं उसके जैसी उनकी जैसी बना भी नहीं सकती, पर वो बहुत ही अच्छी चाय बनाती है। और एक बात मुझे याद आई, मेरे दादा ने मेरे से कही थी, दादाजी ने, कि पहले के टाइम पे जब चाय बनाते थे तो उसकी जो भाप लेते थे ना, उसको अमृत का रूप दिया गया है। ओके। पुराने टाइम में जो चाय बनती थी, मतलब एक कहते हैं ना कि पुराने टाइम पे कि मतलब पुराने लोग जो होते हैं वो कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते। अगर आप चाय देखो तो चाय भी पी रहे हैं, और अगर उसकी भाप है तो उसको भी वो मतलब यूज़ करके उसका फ़ायदा ले लेते। तो उसको एक अमृत का नाम दिया गया है, एक अमृत। वाओ! हाँ जी, तो ज्योति अभी आप जैसे बता रहे थे कि इंडिया में मतलब चाय एक राष्ट्रीय ड्रिंक बन चुकी है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको इसके बारे में डिटेल थॉट्स पता है कि चाय का क्या स्टैटिक्स और क्या सोशल स्टैटिक्स है? देखो, चाय को लेके मुझे इतना तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। जितना मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय समाज में चाय एक रस्म बन चुकी है, एक रिचुअल है। भारतीय परिवारों में क्या होता है, कोई मेहमान आता है या कोई शादी-ब्याह होता है घर में, तो सबसे पहले बिल्कुल। चाय। तो वो चाय एक एक आम तौर पर एक रस्म सी ही है ये। मतलब आप सर्व की जाती है। आपकी अगर बात स्टार्ट होगी तो चाय पे, बात खत्म होगी तो तो चाय चाय पे, पे आपका वेलकम, आपका जाना-आना सब चाय पे। ज्योति लाइक रियली मैं तभी आपसे बात करना इतना पसंद करती हूँ कि आप इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं हर विषय पे, हर टॉपिक पे। अभी तक की इन्फॉर्मेशन वाज रियली रियली मतलब बहुत काम की थी और टू द टॉपिक थी। मैं एक और मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, आपने अभी जितनी बातें बताई कि टी का कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, जैसे हर चीज़ का कंजम्पशन बढ़ता है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स भी बहुत ज़्यादा खुलने लगे हैं आज के टाइम पे इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आपका क्या विचार है कि ये इंडस्ट्री और टी स्टार्टअप्स क्या-क्या चल रहे हैं? आपको कुछ अपडेट्स हैं इन पे? हाँ, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत, कि जो चाय है, हालाँकि लोगों का काफ़ी बिज़नेस बन गया है चाय का। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो मैंने कहीं पढ़ा था ये कि डेली बेसिस पे 3 अरब हाँ जी। कप जो होते हैं यूज़ होते हैं चाय के। जिसको देखते हुए मतलब ऐसा लगता है कि अभी विश्व में, वर्ल्ड में चाय का बाज़ार जो है वो काफ़ी डेवलप हो गया है। काफ़ी हाँ हद जी। तक पैकेजिंग को देख लो या फिर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को देख लो, या काफ़ी सारे लोग अपनी नई-नई ब्रांचेस जो होता है वो ओपन कर रहे हैं एरिया में। इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया इंटरनेशनल बिल्कुल, मार्केट बिल्कुल। में। दुनिया भर में चाय की दुकानें खुल गई है। और बात करें जयपुर की, तो जयपुर में आप हर कोने पर आपको एक चाय की टपरी मिलेगी। बिल्कुल। आप चाय ने इतना प्रोग्रेस किया है अपने कल्चर में, अपने एक सोसाइटी में। जनरेशन में, सोसाइटी में, कि टपरी से कैफ़े तक का सफ़र कोई सोच नहीं सकता था। जैसे एब्सोल्युटली। पुराने लोग अगर उस टाइम पे सोचते कि चाय इतना वाक़ई में क्या इतना प्रोग्रेस करेगा, तो टपरी ले लो। पहले के लोग क्या होता था ना कि एक कोने में जाते थे, चाय की थड़ी। दुकान होती थी, थड़ी, टपरी, जहाँ लोग अपना हैंग आउट करते थे, बात करते थे। अब धीरे-धीरे लोगों ने उसको बिज़नेस में ले लिया। धीरे-धीरे शॉप खुलने लगी, शॉप से फिर कैफ़े खुलने लगे, कैफ़े से फिर लोगों ने अपना स्टार्टअप बना लिया। जैसे कि वो आप उसको जानते होंगे, जयपुर में काफ़ी फ़ेमस है गुलाब जी चाय वाला। साहू चाय वाले। जी, जी, सब मैं जाती बिल्कुल। थी सुबह उठ के साहू चाय वाले के। और चाय सुट्टा बार, एक बहुत बड़ा मतलब नया एक स्टार्टअप है चाय उनका सुट्टा बार। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया में उनके 5,000 से ज़्यादा अपने खुद के एक वाओ! शॉप्स है, जो भी उन्होंने फ्रेंचाइज़ी जो भी देते हैं वो। हाँ। एमबीए चाय वाला, काफ़ी सारे हैं। और तो चाय के स्टार्टअप के साथ आप देखेंगे कि चाय की वैरायटी आप मानेंगे नहीं, मतलब आप
खैर गए होंगे चाय सुट्टा बार में कभी, तो चाय की वैरायटी 25 से ज़्यादा चाय की वैरायटी है। और मैंने कहीं से ये सुना था और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो उनके ओनर है अनुभव दुबे जी, उन्होंने आज तक ना तो चाय पी, ना स्मोक किया। फिर भी उन्होंने अपने जो स्टार्टअप का इतना इनोवेटिव नाम नाम रखा रखा है, है। चाय सुट्टा बार। वाओ! कैन यू बिलीव? मतलब मुझे नहीं पता था कि चाय सुट्टा बार की बैकग्राउंड स्टोरी ये है, एंड नाउ आई गॉट टू नो, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो यही हम सेशन को आगे लेते जाते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति, इतनी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन करने के लिए, हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए इन दिस एपिसोड। तो अभी हम एपिसोड को आगे लेके जाते हैं। वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल इंटरव्यू ऑफ अनुभव दुबे जी हिमसेल्फ। सो ऑडियंस, आप कहीं पे भी मत जाइएगा, अभी हम आते हैं विद द सो आई वेलकम विकास, सौम्या, ज्योति एंड सिमरन। Hello, sir. We are from 90.8 FM. हेलो नमस्कार, मैं हूँ अनुभव दुबे। मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है चाय सुट्टा बार प्राइवेट लिमिटेड। सो वी आर कैफे चेन स्टार्टेड इन 2016 with one outlet in Bawatwa, Indore. Now we have a presence in almost 200 cities with 450 plus outlets in India, Dubai and Nepal. तो मेरा सबसे पहले आपका सवाल था, जयपुर आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अमेजिंग भाई, हमेशा अच्छा लगता है। आप काफ़ी बार जयपुर आए हैं, जयपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ के लोग यहाँ के लोग बहुत पोलाइट है, हॉस्पिटलिटी बहुत ही अच्छी है। ऑब्वियसली वर्ल्ड टूरिज्म का एक पॉइंट है, तो लोग हॉस्पिटलिटी लोग में बहुत ही अमेजिंग है। सो एज यू सेड, आप कल टॉर पे थे, तो जयपुर कैसा लगा आपको? जयपुर बहुत ही अमेजिंग है। मैं वैसे हिस्टोरिकल प्लेस नहीं जा पाता जो जयपुर जिसके लिए लोन है। मैं अपने आउटलेट्स विजिट करता हूँ मेनली, तो अपने सारे आउटलेट्स विजिट के, बाकी और कहीं भी नहीं गया। खाने पीने कुछ? यार कल एक जगह गए थे, हमारे नोन का ही है, सांबरे के क्लब। अच्छा। तो वो अभी आने भी वाले हैं उनके, तो लोग आ गए थे। अमेजिंग क्लब, अमेजिंग। इसके अलावा स्ट्रीट फूड वगैरह कुछ? सीरियस तो यार नहीं जा पाए हम लोग। पहले जब R&D करने आते तो हम लोग खूब घूमते थे। अच्छा। अब इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग। अब मेरी हम लोग अपने जहाँ पे हम लोग आउटलेट रहते हैं वहीं पे जाते हैं। सर, सांबरे के पास में गुलाब जी चाय वाला था, तो आपने ट्राई नहीं यार हम लोग बहुत लेट गए थे। गुलाब जी चाय वाला हाँ, कोई जानता हूँ। Like, चाय हम लोग तो सब कुछ जाते तो कभी ऐसा नहीं लगा कि चाय वाला गुलाब जी भी अपना कोई कंपटीशन हो सकता? जयपुर में हैं यार। वो उनकी लेगेसी है, उनके टाइप से वो कर रहे हैं। वो जयपुर में कोई भी आता है तो फूड स्ट्रीट पे उनका नाम आ ही जाता है। हाँ, So we have to learn from them. I don't know कि how big competitor he will be in the coming years, but अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं उनसे। तो आप आपके इतने बिजी शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हो? लाइक पर्सनल लाइफ और बिजी शेड्यूल? So we make calendar prior to any event. तो महीने डेढ़ महीने का कैलेंडर बना रहता है और फिर बाकी टाइम निकल जाता है। We have a very good team. देखो 5-6 लोग हैं हम लोग, तो उनकी टीम मैनेज होता है। ओके, जैसे कि आपकी जो फर्स्ट फैन फॉलोइंग का मूवमेंट था, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। यार बस पहली बार लाइव अब जब फेस किया आपने अपनी फैन को। यार बीच मतलब कभी तो मिलते रहते हैं ऑलरेडी, तो लोग हमेशा से प्रेज करते हैं। लेकिन जब से वेव हो गई तब से एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक कॉलेज में हम लोग गए थे एंड विदाउट सिक्योरिटी हम चले गए थे, मैं और मेरा एक पार्टनर घूमने। तो वहाँ पे ना ऐसा सीन हो गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो दब गया था मैं। तो वो सांस नहीं बन रही थी, एकदम दबा दिया लोगों ने, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। तब से मैं हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई बॉडीगार्ड लेके थोड़ा चलना पड़ेगा। तब से आपको लगा कि अच्छा फैन फॉलोइंग हो गई अब? हाँ मतलब तब से मालूम पड़ा कि थोड़ा सा एक क्रेज है, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब हम लोग जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी भी। कैसे लोग इतना ज़्यादा मतलब। तो मतलब जब आपने मतलब बिजनेस मॉडल तो आपका था क्या, मेरे को बिजनेस अपना इतना बड़ा करना है, गोरों को चाय बेचनी है जैसा कि आपने कहा, तो ये आपको था कि हाँ मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक भी आएगा, मैं इतने फॉलोअर्स होंगे, या फिर मैं एक स्टार बन जाऊंगा एक एंटरप्रेन्योर के अलावा भी? नहीं भाई, ये तो कभी नहीं था। नहीं था। बिजनेसमैन बनेंगे ये जरूर था, लेकिन इतना प्यार मिल जाएगा ये अनएक्सपेक्टेड। अभी भी हम लोग के लिए अनएक्सपेक्टेड है, हम लोग की टीम के लिए, पूरे सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है। मैनेज ही कर रहे हैं जिसको। तो आपने यहाँ पे स्टार्टअप एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जैसे कि आपने कल कहा था कि हमें गर्ल्स हॉस्टल के बाहर, तो कोई समवन स्पेशल थी या फिर स्पेशल बनाना? यार सारी लड़कियां स्पेशल होती हैं, तो मतलब उसमें
कुछ ऐसा सीन ही ना, मतलब ये था कि गर्ल्स क्राउड को हम अट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग के लिए बॉयज़ को अट्रैक्ट करने बहुत ईजी हो जाएगा। तो मतलब किसी गर्ल्स हॉस्टल के लड़के पे आप अट्रैक्ट नहीं हुआ यार, ये चाय पीने आ जाए तो आज तो दिन बन जाए? बाय अट्रैक्शन तो होती है ऑब्वियसली, वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल, लेकिन मोस्टली वी ट्राई टू फोकस ऑन आवर गोल्स। थोड़ा सा अट्रैक्शन को हम लोग साइड में करते हैं, फोकस करते अरे तो आप ये मानते हो कि जब अपन इनिशियल स्टेज पे हों करियर की, हैं। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उस टाइम डिस्ट्रैक्शन होता है? यार मैं ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोटा मोटा कि रिलेशनशिप आपको हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना, योर पर्सनल लाइफ है, योर प्रोफेशनल लाइफ। सो इफ़ यू आर गुड एट इट तो हो जाएगा आपसे, वो बड़ी चीज़ भी होती है। और रिलेशन कोई बेकार नहीं होता, इट्स गुड फॉर यू, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम, पर्सनल सपोर्ट सिस्टम फॉर यू। अच्छा, और कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि यार, मतलब उस टाइम पे आपकी गर्लफ्रेंड थी जब आपने स्टार्टर करा था ठीक, तो तब आपको ऐसा नहीं आया कि यार अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पे क्वेश्चन करे कि यार मेरा बंदा चाय वाला है, हाँ, या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स बोले कि यार तुम्हारा बेटा चाय बेचता है, बिकॉज गर्लफ्रेंड ने तो नहीं किया, नहीं करा? नहीं सही It's a contact. और पेरेंट्स ने भी नहीं किया, मेरी मम्मी ने नहीं किया। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, बहुत ज़्यादा। पापा को मैं बता नहीं सकता, जैसे बताया बाप तो कभी कमेंट पास नहीं हो आपके ऊपर कि आपका बेटा चाय बेचता है? बहुत बहुत फैमिली तो मतलब रिश्तेदार मेरे पर्सनल, मतलब मेरे फादर की फैमिली की तरफ से तो इन जनरली हो, लेकिन कभी कभार कोई कोई बोल देता है कि यार ऐसा ऐसा कर रहा है, मजाक उड़ाता है, ठीक है। और एक बार जब आदमी का नाम बढ़ जाता है सब लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आपकी जो क्लोज फैमिली रहती है उसके आउटसाइड भी फैमिलीज आपकी बन जाती है, लोग आके आपको प्रेस जुड़ना चाहते हैं सब लोग, लेकिन मेरे लिए किसी की हार्ट फीलिंग नहीं रहती, टाइम होता है। सो तो आपने सिर्फ चाय बेचने का ही क्यों सोचा? कुछ और भी तो ऑप्शंस हो सकते थे ना? ऑप्शन तो यार बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन आई थिंक कि जो हम लोग के पास जितनी कैपिटल थी और जो हम लोग को दिख रहा था कि भाई इतनी चाय हम बेच सकते हैं, मतलब हम लोग को लग रहा था कि चाय बेचना इज सो ईजी, क्योंकि लोग बेच लेते हैं, उन बिक भी जाती है, कहा तो हम लोग को आरोही हो जाएगा उस पर, हम लोग को लॉस्ट होगा, सो दैट्स व्हाई वी चोज चाय। चाय सुट्टा बार में आपकी फेवरेट चाय कौन सी है? मैं चाय नहीं पीता, मैं पसंद नहीं। मतलब जब कोई नया टेस्ट आता होगा तो आप ट्राई तो करते होंगे यार। स्मोक इवन, उसके बाद चाय सुट्टा आउट ऑफ द बॉक्स। यार भाई कभी अपनी मिठाई नहीं खाता। सिंपल सा बंदा है, वी हैव टू सेल व्हाट पीपल लाइक। इट्स मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार कर लोगे तो फिर उस पर रेक्टिफिकेशन नहीं करते हो। तो अगर आपने not to- कभी अपनी चाय नहीं पी? मतलब नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं है चाय। और सुट्टा बाद में हम लोग चाय में मिलता नहीं है ना, ऐसा है। तो आपके आगे ऑप्शंस क्या रहेंगे सर चाय सुट्टा बार को लेके? लाइन सर स्टार्टिंग से हम लोग के सेम है कि वी वांट टू एक्सपैंड इट इंटरनेशनली। वी डिड इट इन 2020, बट स्टिल देयर आर लॉट मोर टू डू। बाहर के मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में देयर इज गुड स्कोप, जैसे यूके मार्केट में, टर्की मार्केट में, तो लगे हुए हैं वहीं ओपन करेंगे और क्या। अच्छा है। तो म्यूजिक सुनते होंगे यार। हाँ भाई, अभी लूप में कौन सा गाना चल रहा है? तो यार अभी तो वो कल तुम लोगों ने बहुत स्टेटस ना ऐसा है तो मेरा मतलब एकदम फील आ रहा था कि हाँ। Wow, what a fun interview. Thank you Vikas Solanki, Jyoti Sen, Soumya Mathur and Simran Saini. बड़ा ही मज़ा आया ये इंटरव्यू सुन के, मुझे तो बहुत पसंद आया ये इंटरव्यू पर्सनली गाइस। आई होप आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। बट our love over the chai has not yet ended. So guys, this is the last segment of our episode, that is poem, a very special poem indeed by Soumya Mathur. नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सौम्या आज आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ जो लोगों के हर सुख में दुख में कभी साथ देना नहीं भूलती। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं उसी चाय की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सोचा खुशी मिलेगी किसी समुंदर के तट पर, किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी जहाज के सफ़र पर खुशी मिली मुझे घर पर, जब किसी अपने की आवाज़ ने पुकारा और कहा आओ साथ मिलकर चाय पीते हैं। Wow, what a poem. I hope you guys have enjoyed this session over the chai, and I hope my team has made this episode very special to you and very memorable to you. Until we meet next time, bye guys. We will come back with another banging episode over something very interesting and very informative for you.